Good morning, student. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Good morning, sir. Good morning to everybody. Good morning, sir. Good morning. Yesterday we studied about the laser amplification process, and in that process, first important step for the laser light is absorption. Second one is spontaneous emission. After that, stimulated emission, and then population involved. In absorption, energy absorbed by atoms in a ground state by using a light, external light, in terms of photon, and then jump from ground state to excited. That process is called absorption. In absorption, atoms take the energy from external source. Second important process, spontaneous emission. In spontaneous emission, there is a time bond for atom to remain in excited state. Very short lifetime we are comparing of excited state, that is 10 to the power minus 8 seconds. And therefore, atom wait for this lifetime in excited state. After that, jump from excited state to the ground state spontaneously by tune without any force. That process is called spontaneous. A very important process by which laser amplification is done in the laser, that is stimulated emission. And name itself mentions this process, that is light amplification by stimulated emission of radiation, where amplification of photons takes place. That process in which photon is amplified in the system, that process is called stimulated emission. Here we see the mathematical equations that A star is the atom in excited state, triggered by external photon HNA, and now becomes atom in A ground state, that is A, while losing the amount of energy crisis. And initially atom absorb the energy H nu, but while losing, the photon of energy becomes double, that is twice H nu, and that's why here amplification of photon is takes place, and hence this process is accepted for laser amplification. What is main advantage of stimulated emission over the spontaneous emission? If anybody asks you the question, please note it in your question. अगर किसी ने भी आपको पूछा कि स्पॉन्टेनियस इमिशन के कंपैरिजन में स्टिमुलेटेड इमिशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है लेजर, आंसर क्या रहेगा? आप एक पेज को दो पार्ट में फोल्ड करके भी इसको लिख सकते हैं। एक पार्ट में आप लिखेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन, दूसरे पार्ट में आप लिखेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन। कॉलम बनाइए पेज के अंदर। Sometime it may be asked in the university examination. What is beneficial of, or what is important advantage of stimulated emission over the process of spontaneous emission? Or differentiate in between, or distinguish in between stimulated and spontaneous emission. So please hold your paper into two parts. First column spontaneous emission, second column stimulated emission. Spontaneous emission में आप लिखेंगे here photon is out of phase. Everybody written? What we written in a spontaneous emission? In spontaneous emission process, photon is out of phase. But in stimulated emission, photon is in phase or constant phase. Number two, आवाज आ रहा है ना क्लियर? Yes, sir. आ रहा है. हाँ, Yes, खुशी, sir. बराबर लिखो। हाँ, sir.
युगल आवाज आ रहा है बराबर? धीरज, युगल, दिव्या, Yes, Yes, sir. sir. फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? स्पॉन्टेनियस इमिशन, एयर फोटॉन इज आउट ऑफ फेज. In stimulated transition, photon is in phase. Number 2, spontaneous emission, no amplification of photon. Spontaneous emission में photon का amplification नहीं होता. Amplification का मतलब होता है बढ़ोतरी. In stimulated transition, there is amplification of photon. सर एक बार बताए ना. Second point, हाँ यस सर. right? In spontaneous emission, no amplification. एम्प्लीफिकेशन है फोटॉन बढ़ना. यहाँ पे देखिए इक्वेशन में, स्टिमुलेटेड इमिशन में, इधर लेफ्ट साइड में hν फोटॉन है, राइट साइड में ट्वाइस hν हो रहा है. इसका मतलब इमिटेड होते समय फोटॉन वहां पे एम्प्लीफाइड हो रहा है. एम्प्लीफिकेशन कहाँ पे मिलता है आपको? तो स्टिमुलेटेड इमिशन फिनोमेना में मिलता है. तो आपने क्या लिखा सेकंड पॉइंट? स्पॉन्टेनियस इमिशन में नो एम्प्लीफिकेशन ऑफ फोटॉन. बट सेकंड पॉइंट, इन स्टिमुलेटेड इमिशन देयर इज amplification of photon. Now point number third. Spontaneous emission. Photon is not in direction, unidirectional. In spontaneous emission, right point number third, photon not in unidirection. That means directionality less. In stimulated emission, photon is unidirectional. Directionality of photon is very, very in stimulated emission. Point number 4. Intensity of radiation is low in spontaneous emission, right? But same point number 4, for stimulated emission, intensity of radiation is high. Intensity of radiation is high. These are some 4 points on the basis of stimulated transition is more advantage as compared to the spontaneous one. Here we get directionality of photon is good, intensity also good, and there is amplification of photon. And all these are the characteristics of laser light. That's why we use stimulated emission phenomena for laser application. Now everybody understand why there is an advantage or importance of population inversion state. आपको पता है यहाँ से इतने प्रॉपर्टी ऑफ फिनोमेना स्टडी करने के बाद अपने को पता चला कि स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन जितने ज्यादा होंगे उतना अच्छा क्वालिटी लेजर अपने को मिल सकता है. फॉर क्वालिटी लेजर एम्प्लीफिकेशन stimulated transition should be greater or should be maximum in this state. Now what is the condition for maximum stimulated transition? यहाँ पे एक इक्वेशन दिया था, mathematical equation. Number of stimulated transition. Please note this mathematical equation. It is given by Einstein. Number of ST, S for stimulated transition, is depend on number of atoms in excited state, N2, time period delta T, density of atom in excited state, and process is explained by Einstein, and it is process from second step to the first, and therefore Einstein constant B21.
This is the mathematical equation which explain the transition, number of transition, stimulated transition take place in the system. अपनी प्रायोरिटी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होना चाहिए, तब क्वालिटी लेजर मिलेगा। लेकिन ज्यादा स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन करने के लिए मैक्सिमम एटम एक्साइटेड स्टेट में रहना चाहिए, डेंसिटी ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। एंड द प्रोसेस in which maximum number of atoms present in excited state as compared to the ground state is called population inversion. Remember this process in mind. So without population inversion, no chance of maximum stimulated transition, and if there is no chance of maximum stimulated transition, that means there is no quality of laser. Yes, anybody? तो क्वालिटी ऑफ लेजर के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन होना इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, सभी को समझ गया पॉपुलेशन इन्वर्जन में क्या होता है? अगर किसी ने भी पूछा व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्जन, दैट देन व्हाट विल योर आंसर? वेरी सिंपल आंसर, द एटम इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू द ग्राउंड स्टेट। मेजॉरिटी ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट एज कंपेयर्ड टू द ग्राउंड स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। सपोज E1 में ग्राउंड स्टेट बोल रहा हूँ और E2 में एक्साइटेड स्टेट बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखिए E2 में एटम 4 है और E1 में एटम 3 है। दैट मींस N2 is the number of atom in excited state is greater than number of atom in ground state, and the process is called population inversion. Explained by this. Everybody understand? पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा तो नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा रहेंगे तो लेजर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन ज्यादा होंगे, और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन ज्यादा होंगे तो लेजर क्वालिटी आपको देगा। बट दैट इज पॉसिबल इन टू स्टेट लेजर। दो स्टेट लेजर में जहां पे एक ग्राउंड स्टेट है और दूसरी एक्साइटेड स्टेट है, ऐसे दो स्टेट लेजर में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मेजॉरिटी नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में होना पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम शुड बी इन एक्साइटेड स्टेट इन टू स्टेट लेजर? रजत बारापात्रे, ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि ज्यादा से ज्यादा एटम ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एटम एक्साइटेड स्टेट में हो दो स्टेट लेजर में? ये पॉसिबल हो सकता है? Yes, sir. हाँ Darshi, does it possible? Is it possible for us to achieve maximum or majority atom in excited state? Samir? Yes, sir. Yes, sir, that is possible. Kuldeep, do you agree with the answer? Kuldeep? Remember, जो दो स्टेट अपन ने एक्सप्लेन किया है उसमें से एक ग्राउंड स्टेट है, उसका कुछ लेना देना, और दूसरी एक्साइटेड स्टेट है बेटा। और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम, यहाँ पे जो मैंने एक्साइटेड स्टेट अज्यूम किया हूँ उसका लाइफ टाइम है 10 to the power -8 सेकेंड, एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। और काफी शॉर्ट लाइफ टाइम रहने के कारण यहाँ से अगर एटम को अपन ने पंप भी किया ज्यादा एनर्जी देके तो भी एटम कहाँ पे जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। बट लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी शॉर्ट, एंड दैट्स व्हाई एटम स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली कम डाउन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड। अगर आप 9:30 बजे कॉलेज में एंट्री कर रहे हो और कॉलेज का लाइफ टाइम यानी कॉलेज का लास्ट टाइम 10:30 बजे, तो 1 घंटे के अंदर में लड़के आएंगे ही नहीं पूरे कॉलेज में। लेट हो गए, कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम है, तब तक जो लड़के आ गए वो बाहर निकलना चाहिए। लाइफ टाइम जरूरी है। इसके कारण पंपिंग करने से जैसे जैसे एटम ऊपर जा रहे, लेकिन लाइफ टाइम ऊपर के स्टेट का कम होने के कारण वो नीचे भी आ रहे। तो गैदरिंग जो डेंसिटी अपने को मिलना चाहिए पर सरफेस एरिया इन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि stimulated transition is also depend upon the density of atom in excited state.
वो डेंसिटी अपने को नहीं देगा, and that's why it is unable to achieve the population inversion in two state ledger. दो स्टेट लेजर के केस में इस प्रकार से पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी वेरी शॉर्ट. Everybody understand this. Whatever atom is pumped into the excited state, they suddenly come down to the ground state because lifetime is short and spontaneously transition देके वो atom excited state से ground state में आ जाते हैं. इसके लिए इसके कारण डेंसिटी वहां पे अचीव होना या पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्साइटेड स्टेट में अचीव होना पॉसिबल है. Hence, there is need of new more states for quality measurement. और इसी के कारण एक नई स्टेट की आवश्यकता अपने को पड़ी क्वालिटी लेजर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए. जिस स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा हो ताकि ज्यादा समय तक एटम वहां पे रुक सके, और जितना ज्यादा समय तक एटम वहां पे वेट करेंगे उतनी ज्यादा एटम का क्राउड वहां पे बढ़ेगा, डेंसिटी वहां पे बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी एटम की बेटा वहां पे बढ़ेगी उतना अच्छा पॉपुलेशन इन्वर्जन अपने को मिलेगा, और पॉपुलेशन इन्वर्जन अच्छा मिलेगा तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन अच्छा होगा, और स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन अगर अच्छा होगा तो क्वालिटी लेजर अच्छा. इट इज अनेबल टू अचीव द लेजर एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस इन टू स्टेट. There is a need of third important state which having longer lifetime as compared to the ordinary excited state. इस स्टेट को क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट को अपन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट. तो आर्टिफिशियली अपन तीसरी स्टेट वहां पे लाते हैं, वो भी एक्साइटेड स्टेट ही है, लेकिन उसका लाइफ टाइम ज्यादा है इस ऑर्डिनरी स्टेट के कंपैरिजन. इसलिए उस स्टेट को अपन ने नया नाम दिया है, एंड दैट इंपॉर्टेंट स्टेट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट. एवरीबॉडी इंग्लिश मेटास्टेबल स्टेट. सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन? सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर. हाँ. Yes, sir. क्वेश्चन आ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, व्हाट इज नीड ऑफ मेटास्टेबल स्टेट और व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल. मेटास्टेबल स्टेट को बेटा अपन आर्टिफिशियली अचीव करते. जब एटम्स के अंदर में अपन इंप्यूरिटीज ऐड करते, इंप्यूरिटी से वहां पे मेटास्टेबल स्टेट. जब सपोज अगर अपने को लेजर मिल रहा है एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, उस एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड में जैसे सॉलिड स्टेट लेजर है अपना रूबी लेजर, उसमें अपन क्रोमियम आयन को डोप करते हैं, एडिशनली आर्टिफिशियली डोप करेंगे क्रोमियम आयन. और ये जो क्रोमियम आयन है वो आयन वहां पे तीसरी स्टेट को फॉर्म करते, दैट इज मेटास्टेबल. द थर्ड स्टेट इज आर्टिफिशियली डेवलप्ड इनसाइड द स्टेट. मेन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द थर्ड स्टेट, that lifetime of that particular state should be high, and hence atom can wait maximum time in that third state. But it is again an excited state. अभी यहाँ पे देखिए मैंने ड्रॉ किया हूँ पेंसिल से. एक अपनी ग्राउंड स्टेट है E1, दूसरी अपनी एक्साइटेड स्टेट है. अब यहाँ पे मिडल स्टेट को अपन मेटास्टेबल स्टेट को E2 बोल देंगे, और तीसरी जो स्टेट है अपनी अभी तक अपन जिसको सेकंड बोलते थे वो थर्ड स्टेट हो जाएंगे, यानी E. E1, E2 and E3, this is the third three states required for the laser amplification. Out of these three states, one is ground state E1 and two are excited states. E2 और E3 दोनों excited है. But lifetime of E3 energy level जो ज्यादा लॉन्ग है ग्राउंड स्टेट से, इज शॉर्ट, वेरी मिनिमम लाइफटाइम, दैट इज 10 to the power minus 2. इसलिए उसको अपन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. और ग्राउंड स्टेट और इस ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट के बीच में तीसरी स्टेट है जिसका लाइफ टाइम ज्यादा है, बेटा ध्यान रखना. लाइफ टाइम इज 10 to the power minus 6 to minus 3. क्वेश्चन आ सकता है आपको. लाइफ टाइम ऑफ ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6. None of these.
Lifetime of metastable state, it vary from 10 to the power minus 6 to minus 3, 10 to the power minus 8, none of. आंसर होना चाहिए मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम कभी भी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द ग्राउंड ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट. इट इज अ एक्साइटेड स्टेट बट लाइफ टाइम इज हाई एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एक्साइटेड. अब होगा क्या, इनिशियली एटम ग्राउंड स्टेट में, बोल्ट्जमैन के कहने के अनुसार एटम इनिशियली कहां पे रहते हैं, ग्राउंड स्टेट. अब इस एटम का अपन क्या करते हैं, पंपिंग प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली लाइट के फॉर्म में, एनर्जी देते हैं. अब एनर्जी इस प्रकार से अपन देंगे दैट इज E3 माइनस E1. E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी नहीं देना. We directly jump the atom from ground state to the last state that is E3. उतने ही मात्रा की एनर्जी अपने को यहाँ पे प्रोवाइड कर. We are externally provide the energy to atom in the ground state using light as a pumping source, and energy is E3 minus E1 so that atom directly jump from ground state to the third energy level. सीधा थर्ड एनर्जी लेवल में एटम यहाँ पे जंप होता है. बट आपको पता है कि लाइफ टाइम ऑफ दिस थर्ड एनर्जी लेवल इज वेरी शॉर्ट, 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड. इसलिए पंपिंग करने के बाद वहां पे जंपिंग होने के बावजूद भी एटम ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए. एंड दीज एटम्स स्पॉन्टेनियसली अपने आप लाइफ टाइम पूरा होने के बाद नीचे आ जाएंगे, कम डाउन फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर एक्साइटेड. अभी पहले एटम क्या करते थे, डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में आ जाते, लेकिन अभी एक्साइटेड स्टेट के बाद दूसरी एक्साइटेड स्टेट है, उसको अपन नाम देते हैं मेटास्टेबल स्टेट, जिसका लाइफ टाइम ज्यादा है. इस मेटास्टेबल स्टेट में एटम, ध्यान रखो स्टेट को बराबर नाम दो. आप कॉपी में डायग्राम को निकालिए. तीन ऐसे एनर्जी लेवल बताइए स्केल से. E1 ग्राउंड स्टेट नाम लिखिए ब्रैकेट में, E2 मेटास्टेबल नाम लिखिए ब्रैकेट में, और E3 ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट नाम लिखिए ब्रैकेट के अंदर. इनिशियली एटम डायरेक्टली जंप टू द E3 एनर्जी लेवल. लाइफ टाइम ऑफ E3 is short, 10 to the power minus. Therefore, spontaneously after completion of lifetime, atom come down from E3 to E2. अब एटम E2 में आएंगे and lifetime of E2 energy level is greater. E2 का लाइफ टाइम ज्यादा है, इसके कारण एटम E2 एनर्जी लेवल में मैक्सिमम समय तक रुकेंगे, और रुकने के बाद वहां पे एटम का क्राउड तैयार होगा. और क्राउड तैयार हो रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे वहां पे मेजोरिटी तैयार होंगे एटम्स की, डेंसिटी अच्छी मिलेगी, एंड एट पर्टिकुलर टाइम population inversion is achieved in metastable state. And if the population inversion is achieved, that means this metastable state is ready for laser activity. और जैसे ही population inversion अचीव होगा, अपन ट्रिगर करके इस एटम को फोर्सफुली नीचे लाएंगे मेटास्टेबल स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, और फोर्सफुली नीचे आते समय एटम लेजर लाइट को यहाँ पे इमिट करेंगे. तो लेजर जो अपने को मिल रहा है थर्ड स्टेट में, वो सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के बीच में. मेटास्टेबल स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, दिस टू स्टेट गिव्स द लेजर. थ्री एनर्जी लेवल में दो लेजर देने वाले स्टेट कौन से हैं, एक तो मेटास्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट. टू स्टेट एनर्जी लेवल में लेजर देने वाले दो स्टेट कौन से थे, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट. दिस इज द एडवांटेज ऑफ थ्री लेवल एनर्जी. एनीबॉडी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें? मेटास्टेबल स्टेट क्या है, अगर किसी ने पूछा तो आपका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज मेटास्टेबल स्टेट? इट इज वन टाइप ऑफ एक्साइटेड स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट को आप क्या बोलेंगे? इट इज वन टाइप ऑफ एक्साइटेड स्टेट, बट लाइफ टाइम ऑफ दिस एक्साइटेड स्टेट इज शॉर्ट एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एक्साइटेड. सॉरी,
long as compared to ordinary excited. मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट से क्या रहता है, ज्यादा रहता है, इसलिए उस स्टेट को एक्साइटेड स्टेट ना बोलते हुए अपन क्या बोलते हैं बेटा, मेटास्टेबल स्टेट। अब मेटास्टेबल स्टेट का एडवांटेज क्या है, अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बोलेंगे? मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा रहने के कारण एटम ज्यादा समय तक वहां पे रुकते, ज्यादा समय तक एटम रुकने के कारण एटम का क्राउड वहां पे तैयार होगा। इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन इजीली अचीव हो सकता है। Got it? This is the advantage of it. बिना पॉपुलेशन इन्वर्जन के अपने को लेजर नहीं मिल सकता। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा होना चाहिए ताकि एटम वेट करे वहां पे मैक्सिमम टाइम पे एटम वेट करने के कारण वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने के कारण वहां पे अपने को लेजर मिलने के लिए सही इन्वायरमेंट है। Got it? And that's why there is a need of third important state in laser amplification. Three state laser का beautiful example है, that is ruby laser, solid state laser. How that ruby laser is work, वो भी अपन आगे देखें। Any doubt now? Metastable state और population inversion और stimulated emission, ये तीनों स्टेट को समझने के लिए किसी को किसी प्रकार का डाउट? Because No, sir. these states is very very important. तीन चीजें लेजर के अंदर में काफी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो समझने के लिए प्लीज आस्क। है किसी को डाउट? जल्दी पूछिए। उज्जवल, उज्जवल, Yes, sir. उज्जवल, मेटास्टेबल स्टेट और ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट, इसमें लाइफ टाइम किसका ज्यादा रहता है? Metastable test. हाँ, व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट? More lifetime. व्हाट इज दैट फिगर? क्या काउंट, उसका आंकड़ा क्या है? 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 6 -3. minus प्रियंका, लाइफ टाइम ऑफ ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट? 10 to the power minus 8 seconds. नीलिमा, which process you select for laser amplification? लेजर लाने के लिए, अचीव करने के लिए कौन सी प्रोसेस को अपन सिलेक्ट करते हैं? स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन? आचल, Spontaneous emission, sir. wrong. Stimulated emission is the process for laser achievement or amplification, not spontaneous emission. Aditya, D03, what is population inversion, in which maximal atom in excited state, maximal atom in ground state? Which is correct answer? For in population inversion, majority atom excited state में रहते या majority atom ground state में रहते? आदित्य, once पढ़ाड़े। Ground हाँ? state. Yes? Yes. Ground. No. In population inversion, maximum or majority atoms should be in excited state, not in ground state. Remember, N2 should be greater than N1. Then it is called population inversion. Atoms कभी भी excited state में ज्यादा चाहिए लेजर के लिए, तभी अपने को लेजर मिलेगा। Can laser achieve in two state? दो स्टेट में अपने को लेजर मिल सकता है क्या? Yes or no? धीरज, Yes, sir.
दो स्टेट में, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में लेजर मिल सकता है क्या? यस और नो? इज इट पॉसिबल फॉर लेजर एम्प्लीफिकेशन No, in sir. two states? No. There is need of third state to achieve the population universal. No. Yes. Yes. दो स्टेट में लेजर नहीं मिलता, उसके लिए तीसरी स्टेट की आवश्यकता है। अब अपन आगे के क्लास में देखेंगे कि 3 लेवल लेजर स्कीम और 4 लेवल लेजर स्कीम क्या है। ओके, एनी डाउट अगर किसी को होगा तो आप